Thank you. Before we move on to the rate tariff part of the entire panel discussion, my last question to the entire panel, starting from Mr. Yogesh ji, is what reforms would you suggest to the respective stakeholders to increase ease of doing business in India, especially in the steel industry today, sir? Anybody can answer, sir. Yeah. Either Anshu, With regards to Yogesh ji. GST, right? Yeah. 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 Yes, this regards GST. One thing which I strongly advocate and I always have a discussion is there's a GST Act, but there are different interpretations by different state formations, different CGST officers of various clauses of the Act. So, particularly section 16(2)(c). So, it would be very helpful if the government can come up with a very clear-cut, crisp guideline as to what should be the scope of 16(2)(c). जो हम एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन तो कर रहे हैं, बट व्हाट कंडीशंस विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर कि आपकी ये कंडीशंस मीट हो गई. नाउ दिस कैन नॉट बी फर्दर चैलेंज. माई सप्लायर इज डूइंग रॉन्ग, ओके, गवर्नमेंट में से आपके सप्लायर ने गलत किया, आपका स्कोप बनता है. मेरे सप्लायर के सप्लायर ने गलत किया, उसकी वजह से सप्लायर गलत हुआ, उसकी वजह से मैं सप्लायर हुआ, तो यू हैव टू ब्रेक दैट चेन. सो दैट कंडीशनैलिटी, दैट लेट्स से क्लैरिटी हैज टू बी पुट इन फॉर्म्स ऑफ अ गाइडलाइन for all the state and the central GST officers. That is one. B, many times this issue we have been raising for quite a few years, but the progress has been very slow. The government is realizing कि पैसा उनका लुट रहा है, मतलब जो waste हो रहा है उनका, fraud में बहुत सारा पैसा जा रहा है. But still we find that when we go to the let's say bureaucrats, we find that their views are very funny and they are not feeling the urgency of bringing this reform. So we feel that there should be some more willingness from the bureaucracy and the ministry to plug this hole and at the root cause, not only treating the symptoms but root cause पे उस पे act करना होगा. Basically, he wanted to point out that 16(2)(c) should be more crystal clear, and the amendment must have been done in 16(2)(c) so that the industry who is really facing a problem without any fault, I would say without any fault, industry is still facing a problem because the conversion of that goods is being done at the industry level. Until then it is a tradable commodity right from the origin of the scrap to it has been forwarded in hand to hand A, B, C, D and then to the final consumer. So 16(2)(c) amendment we have suggested many a times, but can a crystal clear suggestions can come so that since this session is a live session and our ministry has already said that they might take a minute to minute record of this and take a final call on what has to be done. We are not asking for an amendment, but we are asking for a clarity. And a guideline for all the state formations and the CGST formations to follow. Just to add on it, frankly speaking, मुझे लगता नहीं है कि वो इस पर कोई क्लैरिटी देंगे, ठीक है, frankly speaking. And one another point is, दो दिल्ली वेट में और सब जगह इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को असेस किया गया है, अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. तो जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसका असेस नहीं हो जाता, मुझे प्रैक्टिकली लगता नहीं है कि डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट विल कम अप विद एनी पर्टिकुलर क्लैरिटी ऑन इट. वन थिंग विच वन कुड ऑल्सो टेक केयर कि अगर बायर, जैसे सर ने बोला है, बायर और सप्लायर का इंडल्जमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, तो ठीक है, राइट. सो सप्लायर और बायर का अगर ट्रांजेक्शन क्लियर है और द ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूवन बाय द डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स वहाँ जाकर अगर क्लैरिटी आपने सप्लायर को पे किया है, ऐसा भी हुआ है कि सप्लायर को उसने पे नहीं किया एंड देन इज क्लेमिंग अबाउट इट, राइट. सो वहाँ ये चलेगा नहीं. सो विद दिस आई शुड कंक्लूड इट. बेस्ट जो योगेश जी ने बताया कि इसमें क्लैरिटी क्या चाहिए. अगर आप प्री जीएसटी में जाते, सेंट्रल एक्साइज बाय द लॉ, सेंट्रल एक्साइज में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपका पहले सैनवेट आईटीसी को सैनवेट क्रेडिट कहते थे वो लोग, कि सैनवेट क्रेडिट के अंदर आपके सप्लायर ने एक्साइज ड्यूटी भरी कि नहीं भरी रिक्वायरमेंट नहीं था. इनफैक्ट देयर वाज अ सर्कुलर ऑफ सीबीईसी
कि अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा है, एक्साइज ड्यूटी नहीं भरी है, तो उसके लिए बायर को पेनलाइज नहीं कर सकते. इट वाज ए क्लैरिफिकेशन इन द सेंट्रल एक्साइज लॉ. Why can't a similar law can for the past period let Supreme Court decide it? कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉ कैन बी मेड कि यस, अगर आपके पास गुड्स रिसिप्ट का एविडेंस है देन यू आर थ्रू. अदरवाइज अगर क्लियर फेक या बोगस है तो ठीक है, देन यू हैंग द फेलो बोथ द पर्सन. तो वो लॉ बन सकता है, ऐसी बात नहीं है. सो दिट इज अप टू द गवर्नमेंट ओनली. The best part is the government and the finance department has taken, the GST council has taken a consequence on the issue of the scrap and in the steel industry basically. So it is better that now since this topic has been on the platform, so now we can have lot of discussions, a lot of moderation, lot of suggestions can be given, and I hope that could be acceptable. And it should be acceptable since इतने साल से ये मैटर चल रहा है पर कभी प्लेटफॉर्म पे आया ही नहीं, एक टेबल पे कभी आया ही नहीं. इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इशू को हाईलाइट करके मिनिस्ट्री ने, जीएसटी काउंसिल ने इसको टेकअप किया है. सो नाउ लेट्स बी यूनाइटेड, लेट्स स्टैंड टुगेदर. एंड जैसा अभी सोलंकी सर ने बताया कि 16(2)(c) का अगर क्रिस्टल क्लियर हमको ये हो जाता है कि in any case if we are through and हम लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, so in the case of law we should not be like Penalized. punishable, और जीएसटी का हैरेसमेंट उससे काफ़ी कम हो जाएगा. बेसिकली आज तकलीफ सर जीएसटी का हैरेसमेंट का है. इंडस्ट्री चाहती है कि क्लीन बिजनेस करे, रॉ मटेरियल ले, प्रोडक्शन बनाए, प्रोडक्ट बेचे. बाकी बहुत सी चीज़ें हैं. जो सेकेंड टॉपिक हम बात करने वाले पावर का, वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है हमारे लिए. तो एक एक चीज़ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो बिजनेस फ्रूटफुली कर पाएंगे. और गवर्नमेंट जैसे चाहती है कि 300 मिलियन टन का टारगेट लेके चल रही है और प्रोडक्शन बढ़ाए, तो ये सेगमेंट को जो इश्यूज है उसको क्लियर करना ही पड़ेगा. एंड वही फोरम के माध्यम से हम लोग सब लेके जाना चाहते हैं. थैंक यू. 1 second only, since आप कह रहे थे, आई जस्ट लास्ट सजेशन प्लीज सर. अगर 16(2)(c) में अमेंडमेंट नहीं होता है तो पूरी इसकी फेक इनवॉइस के जड़ क्या है? जड़ आपका 18% ड्यूटी, जिससे फर्स्ट लेवल पे बोलता 9% तुम्हें मिलेगा, 9% मिलेगा, प्रॉब्लम वहाँ पर है. तो उसको 18% को 5% कर दे तो गवर्नमेंट कैन डू इट, एंड उसमें गवर्नमेंट को लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर तो पूरा टैक्स भर रहा आपके जाकर के. तो दिस इज द अनदर सजेशन विच इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली फेक इनवॉइस को खत्म कर देगा. 5% में उसका जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो नहीं, नोबडी कैन पे फॉर इट. दिस अनदर सोल्यूशन विच कैन टेक केयर ऑफ, अल्टीमेट इनडायरेक्टली इट विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम आल्सो.